So this is about electromagnetic induction, one of the important chapters, chapter 6. We'll solve this exercise here. And before we begin the topic, let me take 2 minutes and explain what is electromagnetic induction. So what happens is that you have read about RC circuits, right? The capacitor circuits with resistance, right? In capacitor, what happens is in capacitor it starts building charge as you pass the current, and inductor is something that actually builds a magnetic field. So capacitor builds an electric field around it, and inductor builds a magnetic field. So say you have a resistor here and you have an inductor here. So what happens is when you supply the current to this, and as the current goes through, a magnetic field is established by the current. That if there is a current in a wire, there will be magnetic field around it, right? And the direction is in a way that the thumb points towards the current, and your fingers, the right hand fingers, swirl around the magnetic field. So magnetic field is in this direction when the current is in this direction. Okay, so that we have read about. So magnetic field is established and the energy is stored in the magnetic field. So all of this will happen in this chapter, and we'll go with each problem. I'll explain the concept. So what happens is that another concept is that if there's a magnetic field and a conductor is passed through it, or there's a change in the magnetic field or change in the area of the conductor that cuts through the magnetic field, then there will be a current in the conductor, which is known as Faraday's laws of induction. Okay, so current is introduced in the conductor, which is because of the potential difference, which is E, and that is equal to minus d phi by dt. What is phi? Phi is your magnetic flux. Okay, which is integral of magnetic field with area. This integral sign. Okay, my handwriting is a little not too good. Okay, so area vector which is perpendicular to the plane of the loop or whatever, wherever the current is passing. Okay, so B dot dA is the flux, and E is equal to minus d phi dt is the core concept of this chapter, which is called EMF introduced in the wire because of change in flux. So there should be a change in flux. Clear. Now question number 6.1 says predict the direction of the induced current in the situations described by the following figure. Now I must tell you that the current in the conductor is always opposing the change. Okay, it changes, it opposes the change. If there is an increase in flux, it will try to cut down the flux. If there is a decrease in flux, it will try to build up on the flux. तो अगर वो कम हो रहा है तो उसको बढ़ाएगी, इस तरह से करंट फ्लो होगी कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो वो उसके अगेंस्ट में काम करे जो भी चेंज था, राइट। तो हम यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6.1 ए में क्या हो रहा है। यहाँ पर ये एक बार मैग्नेट है साउथ और नॉर्थ का, इसको हम इस कॉइल के पास ला रहे हैं और उससे जुड़ा हुआ एक सर्किट है पी क्यू आर, उसमें वो है नेम गिवन है। तो इसमें करंट किस डायरेक्शन में होगी, तो हम साउथ को इसके पास ला रहे हैं, राइट। तो इसमें इस तरीके से करंट आएगी कि वो साउथ को अपोज करे, ओके, so that south goes away, right? So यहाँ पर a temporary south will be created. What is south? South is this. Current is in clockwise direction, so that is how the current will flow. So it will be in QRP direction. Now second scenario, in this what is happening is there are two coils, okay, or the two circuits PQR and XYZ, और यहाँ पर हम मैग्नेट का मूवमेंट दिखा रहे हैं। साउथ जो है इसके पास आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बिल्डअप हो जाएगा, साउथ, ओके, साउथ इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द करंट, ओके, और यहाँ क्या बिल्डअप हो जाएगा, नॉर्थ इज गोइंग अवे फ्रॉम दिस, so it will try to attract the north, so this will also become south, ओके। तो आप देखिए साउथ मतलब क्लॉकवाइज करंट, तो आपकी जो करंट आ रही है वो क्लॉकवाइज जाके कहाँ जा रही है, ओके,
यहाँ पर साउथ क्रिएट होगा, मतलब ये कॉइल थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। यहाँ ये आपका करंट जो है PQR डायरेक्शन में जाएगा, राइट। क्योंकि कॉइल यहाँ से है तो साउथ मीन्स यहाँ से करंट चलेगी और वह अच्छे से जाकर यहाँ से पास होगी, PRQ डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। और यहाँ पर जब साउथ क्रिएट हो रहा है मतलब अगेन करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज मीन्स दिस, तो करंट कहाँ से आ रही है, ये आपकी नॉर्थ को दूर करेंगे तो यहाँ पर साउथ क्रिएट होगा, विच विल पुल दिस। सो यहाँ पर अगर हमें देखा जाए तो क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर करंट आपकी यहाँ से निकलेगी YZ डायरेक्शन। ओके, ये आपका नॉर्थ हो गया, मतलब करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यहाँ से करंट जनरेट हो रही है और ये यहाँ जा रही है, तो ये नॉर्थ हो गया। ऐसे दिखाते हैं नॉर्थ को। ओके, तो थोड़ा राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। तो सी में आपको एक सर्किट दिखाया है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है। लेट मी टेक द पेन। ओके, तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, राइट। तो यहाँ से करंट फ्लो हुई और ये इधर से जा रही है, करंट का डायरेक्शन भी आपको दिया है। तो अब आप देखिए, अब आप राइट हैंड रूल लगाइए, करंट आपकी जा रही है इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। तो दूसरे में क्या होगा कि यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है मतलब आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट हुआ, बी। ओके, तो बी जब थंब आपका इस डायरेक्शन में आया बिकॉज ऑफ फर्स्ट वन, अब आपका बी इस डायरेक्शन में है तो ये दूसरा आपका कॉइल रखा है, इसमें करंट नहीं, क्या करंट इसमें जा रही थी। तो अब हमें बताना है दूसरी कॉइल में इस तरह से करंट बनेगी कि वो बी को अपोज करे। ओके, तो आप देखिए बी को अपोज करना है तो हमारी इस डायरेक्शन में करंट बनेगी, ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में, राइट, विच इज लाइक एंटी क्लॉकवाइज। ओके, जिससे कि यहाँ इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो बी डैश, वो बी को अपोज करे। ओके, because this B has suddenly been brought in the system, there is a magnetic field, so the current in the new loop will always oppose this magnetic field creates. So इसलिए करंट होगी XYZ डायरेक्शन में। नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट में क्या है, ये आपका यहाँ से स्विच दिया है, ये प्लस है ये माइनस है। ओके, तो रियोस्टेट सेटिंग बीइंग चेंज। ओके, तो ओके, रियोस्टेट सेटिंग बीइंग चेंज मींस यहाँ पर हम करंट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। रियोस्टेट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस, तो आपको पता है V इज इक्वल टू I बाई आर। तो जब हम R चेंज करेंगे तो करंट जो है चेंज होगी और करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, करंट डायरेक्शन ये रहेगी जो ये है। दैट मीन्स यहाँ पर हम चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। अब आप राइट हैंड रूल लगाइए और करंट आपके एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका जो B था, जो मैग्नेटिक फील्ड था, वो इस डायरेक्शन में है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो जो दूसरा लूप है उसमें हमेशा करंट इसके अपोजिट बनेगी सो दैट उसका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, राइट, इस बी को अपोज करने के लिए, राइट, करेक्ट। आप देखिए राइट हैंड रूल लगाइए तो ये जो आपकी फिंगर्स हैं दे स्विल द वायर, अब वायर लपेट दीजिए इनसे। तो जो थंब है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये आपकी करंट को रैप करती हैं। आप अपनी उंगलियों से वो लूप को रैप करिए। ओके, किस डायरेक्शन में इसमें जो है जा रही करंट, तो जो थंब है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रैपिंग की जस्ट क्लोज। ट्रैपिंग की जस्ट क्लोज, तो यहाँ क्या होगा, ट्रैपिंग की क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करेगी यहाँ से यहाँ, राइट। तो इसमें ये करंट गई, यहाँ से करंट गई, यहाँ से करंट गई मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रही तो नॉर्थ हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये साउथ हो गया,
राइट। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा दैट इज लाइक ये यहाँ से करंट आई, ओके, और यहाँ पर करंट आई, ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज आई, राइट। तो वो एक्चुअली रिपेल करेगा, हाँ, इस नॉर्थ को रिपेल करने के लिए यहाँ पर हमने एक एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका नॉर्थ क्रिएट हो गया, ये मेरे ख्याल से एंटी क्लॉकवाइज हुई, यस, एंटी क्लॉकवाइज करंट आई, आपको रिपेल करेगा, यहाँ आपका साउथ करेगा, ओके। तो करंट विल बी इन एक्स आर वाई डायरेक्शन, ओके। और दूसरा क्या है, एफ, एफ में आप देखिए क्या हो रहा है कि ये हमारा एक लॉन्ग इनफाइनाइट करंट वायर है, उसमें हमने करंट पास की हुई है, तो कह रहे हैं उसकी वजह से इस लूप में किस डायरेक्शन में करंट होगी। अब देखिए अगर हमारा वायर सीधा सीधा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में आपकी उंगलियां हैं, राइट। अब इस केस में क्या करते हैं, जहाँ पर लूप नहीं है, नॉन कंडक्टिंग वायर है, तो थंब रखते हैं उसकी डायरेक्शन में, और जो फिंगर जिस डायरेक्शन में जाएंगे उस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। सो इट इज गोइंग दिस वे, सो बिकॉज ये जो आपका लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइंड है, 0 डिग्री पे है, ओके। और फार्मूला क्या होता है फ्लक्स का, फ्लक्स इज बी डी ए, राइट। तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो 90 डिग्री पे हो गया मैग्नेटिक फील्ड से, राइट। तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या हुआ, डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, ओके। इसका मतलब इस पर कोई फील्ड, इसकी फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ओके। तो इसलिए इसमें कोई करंट नहीं क्रिएट होगा, सो नो करंट, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज अलाइंड विद द लूप, ओके। नाउ 6.1, that was answer 6.1 that you read through if you want, okay। Lenz rule, ये ओके, यही सब लिखा है, एक्सप्लेन नहीं किया इसमें। 6.2 करते हैं। अब 6.2 में क्या है, 6.2 में वो कह रहे हैं कि 6.2 में वो आपसे कह रहे हैं कि, एक मिनट, लेट मी करेक्टेड, गोइंग लिटिल हेवायर, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन, या, एंड नाउ विल टेक इट अगेन, और यहाँ पर पेन का कलर बदल देते हैं। Question is, use Lenz law to determine the direction of induced current in the situation described in figure 6.16। ये जो फिगर है ये इस तरह से इरेगुलर लूप था, वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू ए सर्कुलर शेप, तो उसका हमने बना दिया है सर्किल। तो सर्कुलर लूप बीइंग फॉर्म्ड इनटू नैरो स्ट्रेट वायर, तो नैरो स्ट्रेट वायर किस तरीके से बनेगा, ये थोड़ा इस टाइप का बनेगा, हाँ, ये हमारा सिचुएशन बी हो गया। तो अभी क्या है कि हमें डिटरमाइन करना है इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में। तो आप देखिए जब ये इरेगुलर था उससे रेगुलर सर्कुलर हुआ तो क्या हुआ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिखाया हुआ है, यहाँ पे क्रॉस दिखाया है, यहाँ पे डॉट दिखाया है, ओके। तो आप देखिए उसका क्या हुआ, एरिया बढ़ गया है ना, जब हमने उसको सर्किल बनाया तो आपका डीए बढ़ गया, राइट। तो आपका फ्लक्स में चेंज आ गया, फ्लक्स में चेंज आ गया तो वो उसको अपोज करेगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, आई थिंक इट्स कमिंग आउट ऑफ द पेज, इट्स कमिंग आउट ऑफ द पेज। तो इसमें जो करंट बनेगा वो इस हिसाब से बनेगा कि इट शुड गो इनसाइड द पेज, राइट। सो इट विल बी इन द बी सी डी डैश ए डायरेक्शन, ओके। एज द लूप चेंजेस फ्रॉम इरेगुलर टू सर्कुलर शेप एरिया इंक्रीजेस, राइट। एरिया इंक्रीज हो रहा है वो तो हमें दिख भी रहा है, ओके। हेंस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद इंक्रीजेस according to Lenz law, the induced current should produce magnetic flux in the opposite direction. For this, induced current should flow in the anti-clockwise direction, तो इस डायरेक्शन में आपकी करंट जाएगी, तो उससे क्या होगा कि आप लगा के देखिए तो आपका मैग्नेटिक फील्ड थंब की डायरेक्शन में आएगा, राइट हैंड रूल से। अगर आप वायर की डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को रैप करेंगे तो करंट की डायरेक्शन में, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आया अंदर की तरफ, जो करंट मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है। अपोज कर रहा है मीन्स ये थोड़ा बाहर को निकल रहा है और ये जो निकल रहा है ये अंदर को जा रहा है, तो वो चेंज ऑफ फ्लक्स को रेजिस्ट करेगा, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कम हो जाएगा तो आपका क्या होगा, ए बी सी डी ये क्या लिखा है वो छोड़ो, मैंने आपको समझा दिया, ओके। ज्यादा जरूरी समझना, प्रॉब्लम तो दूसरे टाइप की भी आ सकती है। अब देखिए सेकंड वन है,
Circular loop being deformed. As a circular loop is being deformed into a narrow straight wire, its area decreases. तो आप देखिए एरिया कम हो गया, राइट. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम हो गया. तो अब इस तरह से करंट बनेगी कि बी बढ़ जाए, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए. ओके, तो किस डायरेक्शन में आ जाएगा? ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है, राइट. तो करंट अब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, राइट. ए डैश बी डैश इन्होंने क्या दिया है, ओके, वो डायग्राम अलग हो गया. तो अब आपकी करंट जो है ए डैश बी डैश रिवर्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो दैट आपका मैग्नेटिक फील्ड और जो सिस्टम का मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों अलाइन हो जाए और उसको इंक्रीमेंट मिले. ओके, बी और बी डैश होगा. सो द मैग्नेटिक फील्ड विल सपोर्ट द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स व्हिच इज नेगेटिव. तो यहाँ डी फाई बाई डी टी जो है वो नेगेटिव है और यहाँ डी फाई बाई डी टी पहले वाले केस में जो है पॉजिटिव है. आई होप इट इज क्लियर. नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स लिखिए, मैं आपको वहाँ जवाब दूंगा. ओके, हम क्वेश्चन नंबर 6.3 करते हैं. उसमें है लॉन्ग सोलेनॉइड विद 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर. मतलब ये आपको स्मॉल एन दे दिया, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल एन ये आ गया. has a small loop of area 2 centimeter square placed inside the solenoid normal to its axis. If the current carried by the solenoid changes steadily from 2 ampere to 4 ampere. तो इसमें क्या कह रहे हैं कि एक सोलेनॉइड है लाइक दिस. ओके, उसके अंदर हमने एक छोटा सा लूप रख दिया है, स्मॉल लूप, और उसका एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका दूसरे कलर में बनाते हैं, ब्लैक कलर में. ये जो लूप है ये आपका ब्लैक कलर का एक स्मॉल करंट लूप जिसका एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है रख दिया है. और ये सोलेनॉइड में जो करंट जा रही थी ये पहले 2 एम्पियर थी और बाद में इसको जो है 4 कर दिया, 4 एम्पियर. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ा दिया. ओके, और आपको dt भी दिया है. तो आपको dB दिया है, डेल्टा b चेंजेस फ्रॉम से b1 to b2. ओके, I चेंजेस फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर. और टाइम क्या दिया है? टाइम आपका दिया है 0.1 सेकेंड. ओके, तो व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ? ई इज माइनस डी फाइव बाई डी टी हमें पता है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं. नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड इज 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर. सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो होगा 1500 टर्न्स पर मीटर. 1 मीटर है 100 सेंटीमीटर. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हुए? राइट, दैट इज 1500 टर्न्स एंड स्मॉल एन. सोलेनॉइड हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया ए इज इक्वल टू 2 into 10 to power minus 4 मीटर स्क्वायर. डी आई जो है 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर हो गई. तो चेंज इन करंट इन द सोलेनॉइड इज 2 एम्पियर. चेंज इन टाइम इज 0.1 सेकेंड. इंड्यूस ईएमएफ इज माइनस डी फाइव बाई डी टी. तो अब फाई की वैल्यू निकालिए पहले. फाई इज इक्वल टू बी ए. बी इज म्यू जीरो एन आई. बी इज म्यू जीरो एन आई. एन आई ये जो आई है ये सोलेनॉइड की करंट है. ओके, लूप की बात नहीं हो रही. म्यू जीरो की वैल्यू फिक्स होती है. ओके, तो डी बाई डी टी बी ए क्या हुआ? ई इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी विच इज डी बाई डी टी. ये आपका यहाँ से लिया है, E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी. एक्चुअली माइनस साइन होता है बट उसको हम यहाँ इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज वी आर डूइंग नंबर्स. ओके, तो E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी माइनस, दैट मीन्स हमारा B जो है बी ए होता है, और B क्या है? B है म्यू जीरो एन आई. ओके, A क्या है? A आपको दिया हुआ है लूप का एरिया, राइट, म्यू जीरो एन ए. ये आपका हो गया डी फाइव. ओके, इज इक्वल टू डी फाइव. ओके, एंड अब उसको क्या किया है कि म्यू जीरो एन आई था आपका बी, राइट, और उसमें आप डी टी लगाना है. तो इसमें क्या चेंज हो रहा है? इसमें ना एरिया चेंज हो रहा है ना एन चेंज हो रहा है. क्या चेंज हो रहा है? करंट चेंज हो रही है. तो म्यू जीरो एन ए इंटू डी आई बाई डी टी कर देंगे तो आपकी वैल्यू देखिए आ गई. दैट इज 2 इंटू 10⁻⁴. ये आपका लूप का एरिया था. म्यू की जीरो की वैल्यू लगा दी, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर लगा दिए, करंट चेंज हुई 2 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड. तो चेंज इन फ्लक्स हो गया 7.54 इंटू 10⁻⁶
वोल्ट, ये आपका ई आ गया बिकॉज ये डी फाइव बाई डी टी है. ओके, हेंस द इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द लूप इज 7.54 into 10⁻⁻6 volts. ओके, ये कुछ जो है प्रॉब्लम हो गया. होल्ड ऑन, आई विल सॉल्व इट. ओके, अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, रेक्टेंगुलर वायर लूप है जिसकी दो साइड्स हैं 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. एक छोटा सा कट है, that is required, no, otherwise how will you generate the voltage difference EMF. ओके, तो ये इसकी एक साइड है 8 सेंटीमीटर, एक साइड है 2 सेंटीमीटर. ओके, राइट, is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the loop. तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है 0.3 टेस्ला. अब इनसाइड है आउटसाइड है वो नहीं दिया है, तो व्हाटएवर, लेट्स से इनसाइड है. या ये आपका एक मैग्नेटिक लूप में है. ओके, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है. इनसाइड को हम दिखाते हैं ऐसे एरो से, ऐसे. ओके, क्रॉस दिखाते हैं अंदर. हाँ, अब इसमें से हमने इसे मूव किया, दो तरीके से मूव किया है. डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, मतलब एक बार हमने ऐसे लिया, उसे इधर से मूव किया है. ओके, ये है आपका ए केस. और बी केस क्या है? बी केस में हमने इसे ऐसे मूव किया है, इस डायरेक्शन, जो 2 सेंटीमीटर है. हाँ, अब आपको पता है कि BLV होता है. ओके, इंड्यूस EMF, राइट. तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर वायर इज 0.08, 0.02. एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप फिक्स रहेगा दोनों ही केसेस में, इज इक्वल टू 0.08 into 0.02. Magnetic field strength is 0.3 Tesla. Velocity of the loop is 0.01 meter per second. EMF developed in the loop is given by E is equal to BLB, which is B आपको 0.3 टेस्ला दिया था, लेंथ आपको 0.08 दी थी. इस केस में आप देखिए, ये आपका 8 जो है लेंथ है, ये इसकी बात हो रही है, इसके परपेंडिकुलर ले जा रहे हैं हम इस डायरेक्शन में, राइट. वेलोसिटी आपको दी हुई थी, तो आ गया 2.4 into 10⁻⁴. टाइम टेकन टू ट्रेवल अलोंग द विड्थ. ओके, तो विड्थ क्या है, व्हाट इज द इमीडिएट, तो अलोंग द विड्थ मींस 0.02 विड्थ हो गई यहाँ पर, 0.2 मीटर. ओके, तो इतना ही टाइम लगेगा उसको बाहर ले जाने में फील्ड से, राइट. तो 2 सेकेंड, एंड द इंड्यूस वोल्टेज लास्ट फॉर 2 सेकेंड. ओके, ये क्वेश्चन था आपका. और हाउ लॉन्ग डज द इंड्यूस वोल्टेज लास्ट इन ईच केस. ओके, एक बार आप निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर, फिर वोल्टेज खत्म, राइट. नाउ नेक्स्ट वन, बी पार्ट. बी पार्ट में सेम EMF डेवलप्ड इज BBV. यहाँ आपका विड्थ के अक्रॉस ही है आपका बी पार्ट. ओके, तो यहाँ L की जगह 0.02 सेंटीमीटर आ जाएगा, 0.02 मीटर. तो ये आपका होगा 0.6 into 10⁻⁴. अब टाइम क्या लगेगा, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा बिकॉज वेलोसिटी फिक्स है, बट लेंथ आपको जो कवर करनी है दैट इज 8 सेंटीमीटर, है ना. तो आपको इट विल टेक मोर टाइम, इट विल लास्ट फॉर 8 सेकेंड. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6.5. A 10-meter long metallic rod is rotated with an angular frequency of 400 radian per second about an axis normal to the rod passing through its valve. The other end of the rod is in contact with the circular metallic ring. A constant and uniform magnetic field is parallel to the axis visible. Calculate the EMF developed between the center and the ring. ये सिनेरियो ऐसा है कि ये आपकी मेटालिक वायर रॉड, और ये जो है आपका, ये आपका एक कंडक्टिंग लूप है यहाँ. ओके, ये फिक्स है सेंटर पे, राइट. और इसकी लेंथ है 1 मीटर, और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई है मूवमेंट की ओमेगा. ओमेगा इज 400 रेडियन पर सेकेंड. ओके, नाउ अबाउट एन एक्सिस नॉर्मल टू द रॉड पासिंग थ्रू इट्स ओन वन एंड. ओके, नॉर्मल टू द रॉड मीन्स यहाँ से आप समझ लीजिए आर पार जा रही है एक एक्सिस, और उस पर ये रोटेट कर रहा है. ओके, ओमेगा स्पीड से. अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कांटेक्ट विद द सर्कुलर मेटालिक रिंग. तो ये जो है आपका मेटालिक रिंग है, मतलब
यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको बता रहे हैं कि मेटालिक रॉड है, मेटालिक रिंग है, एक ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, राइट। Constant and uniform magnetic field of 0.5 Tesla is parallel to the axis. Parallel to the axis means either, let's say, inside the page. Okay, ये आपका एक magnetic field लगा हुआ है. You could have taken out of the page also, but I don't know why I always choose to take magnetic field inside them. Okay, so anyway, that does not matter because direction की बात यहाँ नहीं हो रही है. तो B आपका जो है that is 0.5 Tesla. या कैलकुलेट द ईएमएफ डेवलप बिटवीन द सेंटर ऑफ द रिंग. तो आपको पता है ईएमएफ का फार्मूला क्या है. लेंथ ऑफ द रॉड इज 1 मीटर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 400 रेडियन पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है. तो एवरेज लीनियर वेलोसिटी ऑफ द रॉड क्या होगी. एवरेज लीनियर वेलोसिटी ऑफ द रॉड इज आई ओमेगा. वन एंड ऑफ द रॉड हैज जीरो लीनियर वेलोसिटी while the other end has a linear velocity of L omega. Okay, L is the length of the rod, right? Correct. तो किसी भी सर्कल में अगर हम लेते हैं तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है. आपको पता होगा यहाँ पर r की जगह क्या हो गया, l हो गया, लेंथ l ओमेगा. तो एवरेज लीनियर वेलोसिटी ऑफ द रॉड होगी l ओमेगा बाई 2. सो ईएमएफ डेवलप बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग इज या दैट इज BLV, दैट इज BL इनटू V इज l ओमेगा बाई 2, दैट इज BL स्क्वायर ओमेगा बाई 2. तो वो सब वैल्यूज आपने लगा दी, आपको 100 वोल्ट आ गया ईएमएफ डेवलप. ओके, now we move on to question number 6. There are how many questions? I think 2-3 more questions are there. So we are almost reaching the end of it. Okay. आप देखिए उस चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, आपको करने चाहिए वो. ओके. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर लॉन्ग एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज फॉलिंग विद द स्पीड ऑफ दिस. हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 10 मीटर एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ओके, सो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया. It is falling with a speed of 5 meter per second at right angle to the horizontal component of the Earth's magnetic field. तो B क्या हो गया, B आपका राइट में है. ओके, राइट एंगल पे आएगा क्योंकि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ साउथ में होता है. ओके, अर्थ का, राइट. तो वो राइट एंगल पे फॉल कर रहा है, उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ 0.3 into 10⁻⁴ वेबलर per meter square. What is the instantaneous velocity of the EMF induced? Value of the EMF induced in the wire. तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है E. E is BLV, right? Length of the wire is 10 meter. Okay. Falling speed of the wire is 5 meter per second. और B आपको दिया हुआ है. तो B है आपके पास, L है और V है. तो आप लगा दीजिए फार्मूले में E is equal to BLV. 1.5 into 10⁻³ volt, which is 1.5 millivolt. Okay, B. What is the direction of the EMF? ये तो बहुत ही आसान है. Using Fleming's right hand rule, it can be inferred the direction that is from west to east. Okay, so ये आपका करंट किस डायरेक्शन फ्लो करेगा, नॉर्थ साउथ में आपका मैग्नेटिक फील्ड है या, और तो आप उसको कट कर रहे हैं एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड को, राइट. तो ये आपका ज्योमेट्रिक नॉर्थ है, आपका ज्योमेट्रिक साउथ है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा उल्टा होता है. दिस इज अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और ये आपका this is falling straight, right? So that means you are cutting through. Okay, so you know this is your geographical north, this is geographical south, this is your magnetic south, and this is your magnetic north, and this is magnetic south. Okay, so you have Earth's magnetic field going from this to this. Okay, so this rod is falling in this field. Okay, now think of north and south, which is at 90-degree plane to the movement of the rod. Okay, so the EMF generated in this rod will be such that it will oppose the magnetic field. Okay, or the d phi by dt. So my take is that a magnetic field generated in the rod will be just opposite. Okay, so that is possible if you see swirl your fingers. That is possible if the current is from west to east.
So current will be from, I mean EMF will be from west to east. Okay. Now second question is, which end of the wire is at the higher electric potential? Now which end of the wire is at the higher electric potential? If you see, we can do it using Lorentz force, which is this wire has conducting electrons and conducting positrons. Okay. And then we know F is equal to Q V cross B. Okay. Now just think of it. The rod is falling down, and you have you know how to do this using right hand rule, right? You have magnetic field in this direction inside. So the force is on west to east side. That means what? That means more and more positive charge will get accumulated here, and electron will face force in this direction. This will be minus QE, and this will be plus QE. So this east side of the rod has more positive charges. This is more negative charges. So east end of the wire will be at higher potential, and west end will be at lower potential. Another explanation of this is that you treat this rod as a cell. If you are treating this rod as a cell, then the current is flowing from west to east. Now within the cell, current flows from negative terminal to positive terminal. Outside in the circuit, it flows from positive terminal to negative terminal. So there could be two, three explanations for E to be more positive than west. Okay, and other thing we have already done. So now moving on to question number 6.7. Question number 6.7 says current in a circuit falls from 5 ampere to 0 ampere in 0.1 second. So you have DI given, you have DT given. If an average EMF of 200 volt induced, give an estimate of the self inductance. Now E is equal to L di by dt, right? Or L is equal to E over di by dt. Now use that formula and solve this question, right? So you have di, which is 5 ampere, and you have t, which is 0.1 second. You have EMF E is equal to 200 volt. So E is equal to minus L di by dt. Using that, we'll solve L is equal to E over di by dt. Put the values, you get the value 4 Henry. Okay. Now the last question, I guess, 6.8. A pair of adjacent coils has a mutual inductance of 1.5 Henry. Okay. If the current in one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 seconds, you have di by dt given. What is the change of flux linkage with the other coil? So we will use the formula E is equal to d phi by dt. Okay, so d phi by dt is mu di by dt. Mu is the mutual inductance, right? Initial current is 0 ampere and final current is 20 ampere. Change in current di is I2 minus I1, which is 20 ampere. Time taken is 0.5 seconds. So you have di here, you have dt here. Induced EMF is d phi by dt, where d phi is the change in the flux linkage. EMF is related to mutual inductance, and E is equal to mu di by dt. That means mu di by dt is equal to d phi by dt. So we have di by dt, okay, and we have to find what is d phi. So we have to find d phi, we'll put the value of mu there and we'll find it. Okay, mu is the mutual inductance 1.5 Henry, okay, into di by dt is also there. So 1.5 into 20 is 30 Weber. And the change the flux linkage is 30 WB. Okay, so please keep in touch, and we'll do next exercise AC. Okay, next, and if you have any questions or suggestions, you can always put that in comments. Please subscribe the channel. Okay, and press the bell icon so that you keep getting updates as we keep uploading new exercises. Thank you, and see you again.